Now look, the another type of polygon, regular and irregular polygon. So before starting the topic, you have to know about some terms. First term is equilateral and the second is equiangular. What is the meaning of both the term? So first of all, just break the term. This equilateral can be break into two parts, equi and lateral. Equi means equal and lateral means sides. That means when we define equilateral polygons, means every side, all sides of the polygons must be equal, then that polygon is said to be equilateral. Now equiangular, again it can be break as equi and angular. Equi means equal, angular means angles. So a polygon is said to be equiangular when all the angles have the same measure. सभी एंगल्स का मेजरमेंट सेम अगर आए तो उस पॉलीगॉन को इक्विएंगुलर पॉलीगॉन कहेंगे, और सभी अगर पॉलीगॉन के सभी साइड्स का लेंथ सेम आए तो उसे हम इक्विलैटरल पॉलीगॉन कहेंगे. सो लेट अस डिफाइन इट. Now look here, equilateral polygon means a polygon is said to be equilateral if the length of all sides are equal. Length of all sides are equal. In mathematics, we generally use the word for the equal means congruent. Congruent means equal to each other. So we can also write it as a polygon is said to be equilateral if all sides are congruent. मीन्स कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये हो गया कि सभी साइड्स का लेंथ आपस में सेम होगा. तो स्टूडेंट जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, इफ ऑल द साइड्स आर इक्वल और ऑल द साइड्स आर congruent. So just think about the polygon. Suppose that it is a triangle and all the length of all the sides are equal here. So I have put the same notation on each of the side. So this type of triangle is said to be equilateral triangle. Equilateral triangle. Now think about the another figure. I have drawn a quadrilateral. Here also the length of all sides are equal. So it is said to be equilateral quadrilateral. So equilateral quadrilateral is named by another name, square. Also you can say it as equilateral quadrilateral. Now look here. When we draw the opposite sides parallel and the length of all sides are equal here, then it is also said to be equilateral quadrilateral, but its name is rhombus. Similarly, you can draw many of the figure like pentagon. When you draw, you can draw any polygon with the same length of the sides. Means यहाँ भी हमने सभी sides का length same draw किया है. That means इसे हम कहेंगे equilateral pentagon. Means अगर सभी sides same है तो नाम के आगे equilateral लगा दे तभी भी हम उसे कह सकते हैं. लेकिन कुछ स्पेशल नाम भी तैयार किए गए, जैसे इसे हम इस इक्विलैटरल क्वाड्रिलैटरल को स्क्वायर कहते हैं, इस इक्विलैटरल क्वाड्रिलैटरल को हम रोम्बस कहेंगे. यहाँ सभी साइड्स इस तरह से थोड़ा स्लैंट दिखेंगे और पैरेलल अवस्था में पाए जाते हैं. तो इट इज द इक्विलैटरल पॉलीगॉन. Now we are going to define the equiangular polygon. Now equiangular polygon.
A polygon is said to be equiangular if measure of all angles are equal. किसी भी पॉलीगॉन को इक्विएंगुलर तभी कहेंगे जब उसके सभी एंगल्स का वैल्यू सेम आए, या इसे दूसरी भाषा में हम लिख सकते हैं ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स. इफ ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट मीन्स इक्वल, मीन्स सभी एंगल्स इक्वल हो, तब हम उस पॉलीगॉन को इक्विएंगुलर कहेंगे. नाउ जस्ट थिंक अबाउट द ट्रायंगल. ट्रायंगल में हम सभी एंगल को अगर बराबर करें तो सभी एंगल का वैल्यू 60 डिग्री आएगा. तो अगर ऐसा ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल्स आपस में सेम हो तो इसे हम इक्विएंगुलर ट्रायंगल कहेंगे. इक्विएंगुलर ट्रायंगल. इक्विएंगुलर ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल दोनों सेम होते हैं, इसीलिए इसका एक ही नाम हम लोग डिसाइड करते हैं और उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल ही कहते हैं. ऐसे एंगल के आधार पर हम इसे इक्विएंगुलर ट्रायंगल भी कहेंगे, लेकिन इसका स्पेशल नाम तैयार किया गया है इक्विलैटरल ट्रायंगल. नाउ लुक एट द सम अनदर. Here I have drawn a square where the length of all sides are equal, but the all angles are also equal here. 90 डिग्री. यहाँ सभी एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है, तो इसे भी हम इक्विएंगुलर क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, जिसे स्क्वायर के नाम से जाना जाता है. इसे इक्विएंगुलर क्वाड्रिलेटरल भी कह सकते हैं. नाउ लुक एट सम अनदर टाइप. Here I have drawn a rectangle. यहाँ भी प्रत्येक एंगल का वैल्यू सेम होता है, जिसे हम रेक्टेंगल कहते हैं. तो अगर सभी एंगल का मेजरमेंट सेम है तो उस तरह के फिगर को हम इक्विलैटरल पॉलीगॉन कहेंगे या इक्विलैटरल क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, या स्पेशल नाम उसका कुछ है तो वह कहेंगे. लेकिन यहाँ पर चारों साइड आपस में सेम नहीं है. इन दोनों फिगर्स को हम देखें तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स भी सेम होते हैं, स्क्वायर में चारों साइड्स भी सेम होते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ एंगल सेम होते हैं, चारों साइड आपस में सेम नहीं होते. लेकिन हर इस स्थिति में जब सभी एंगल सेम हो तो उसे हम इक्विएंगुलर पॉलीगॉन कहते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू लुक अबाउट द रेगुलर पॉलीगॉन. Now here, regular polygon. A polygon which is both equiangular and equilateral is called a regular polygon. तो वैसा पॉलीगॉन जो इक्विलैटरल भी हो और साथ ही साथ इक्विएंगुलर भी हो उसे रेगुलर पॉलीगॉन कहेंगे. जैसे in this figure you can find that every side, all sides are equal and all angles are equal to each other. So why it is a regular polygon and it is named as equilateral triangle. This polygon has 4 sides and all sides are equal and all angles are equal and it is said to be a square, means regular quadrilateral. Now here 5 sides are given and all sides are equal and all angles are equal of this, all angles having the same measure, so why it is said to be a regular pentagon. अब अगर हम साइड्स और बढ़ाते जाएं और अगर वह पॉलीगॉन रेगुलर है तो हर के साथ रेगुलर वर्ड यूज करेंगे. मीन्स अगर 6 साइड है तो रेगुलर हेक्सागन, फिर 7 साइड है तो रेगुलर हेप्टागन एंड सो ऑन. आगे यहाँ पेंटागन से जितने नाम शुरू होंगे सभी के साथ रेगुलर वर्ड यूज करेंगे, तब जब वह पॉलीगॉन इक्विलैटरल के साथ साथ इक्विएंगुलर भी हो.
इसे हम दूसरे तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. एक पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, देन it is said to be a regular polygon. Now we are going to define another type is irregular polygon. Irregular polygon. So how we can define a polygon which is not now here look at the definition of irregular polygon. A polygon which is not equiangular or equilateral is called an irregular polygon. और दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि अगर पॉलीगॉन रेगुलर नहीं है दैट मीन्स वो क्या है, इरेगुलर है. तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के हिसाब से देखें, अगर हम किसी पॉलीगॉन को ड्रॉ करते हैं और पॉलीगॉन अगर रेगुलर नहीं है, जैसे एक ट्रायंगल हम ड्रॉ कर रहे हैं जिसके साइड्स के लेंथ डिफरेंट है, जैसे इसका लेंथ कुछ और है, इसका कुछ और है और इसका कुछ और है, इसलिए 3 डिफरेंट नोटेशन दिए गए हैं यहाँ पर. अगर लेंथ अलग अलग है तो साइड्स इक्विलैटरल नहीं होंगे, सभी साइड्स इक्वल नहीं है दैट मीन्स ये इक्विलैटरल नहीं है, और ये इक्विलैटरल नहीं है दैट मीन्स ये रेगुलर नहीं होगा, तो ये इरेगुलर पॉलीगॉन हो गया. ऐसे ही अगर हम रेक्टेंगल की बातें करें तो रेक्टेंगल में भी हम क्या देखते हैं, चारों एंगल तो इक्वल होते हैं यहाँ पर, लेकिन चारों साइड आपस में सेम नहीं है. तो कोई एक केस होने पर भी अगर कोई पॉलीगॉन इक्विएंगुलर है लेकिन वो इक्विलैटरल नहीं है, तभी भी उसे हम रेगुलर नहीं कहेंगे. अगर वह इक्विलैटरल है लेकिन वह इक्विएंगुलर नहीं है, तभी भी हम उसे रेगुलर नहीं कहेंगे. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम उसे रेगुलर कहेंगे. तो यहाँ पर ये इक्विएंगुलर तो है लेकिन इक्विलैटरल नहीं है क्योंकि चारों साइड्स आपस में सेम नहीं है. तो इस तरह के फिगर को हम इरेगुलर पॉलीगॉन में डालते हैं. मीन्स सभी साइड्स का लेंथ अगर हम डिफरेंट कर दें तो अपने आप जो फिगर तैयार हो जाएगा वह फिगर इरेगुलर पॉलीगॉन कहलाएगा.